So we have started with the pharmacognosy and we have seen few important introductory point regarding the alkaloids. Okay. So today we will see the remaining point. Today only I will take some part. We have seen this. Okay. Okay. Yesterday we have seen this. After this, we will start from this slide. So remember, just a minute. So classes of alkaloids and their biosynthetic precursor. Okay, biosynthetic precursor amino acid. This part is important for NIPER also. Lot of times in the NIPER they have asked these questions. So remember, tropane alkaloids, pyrrolidine alkaloids, pyrazolidine alkaloids. Okay, these three kind of alkaloids: tropane, pyrrolidine, and pyrazolidine. Tropane alkaloids like atropine, cocaine, hyoscyamin, scopolamine, hyoscine. Pyrrolidine alkaloids like cuscohygrine and hygrine. Then pyrrolidine alkaloid like laminin. Okay, then laminin, indicine, N-oxide, metoclodine, retinocin. These are alkaloids with tropane, pyrrolidine, and pyrazolidine. Pyrrolidine. All these are biosynthesized from ornithine amino acid. Ornithine amino acid. L-ornithine is a biosynthetic precursor for tropane, pyrrolidine, and pyrrolidine. All these alkaloids are biosynthesized from ornithine amino acid. Then lysine amino acid. L-lysine is the bioprecursor for piperidine type of alkaloid, quinazolidine type of alkaloid, and indolizidine type of alkaloid. So piperidine alkaloid like lobeline, piperidine, anaferine. Quinazolidine alkaloid like cysteine, lupulin, and serpentine. Then indolizidine alkaloid like quetinospermine and spansolene. Okay. Then tyrosine is amino acid which is a biosynthetic precursor for phenylethylamine or phenylethylamine alkaloids. Okay. Like adrenaline. Okay. They are not alkaloids, but you can say they are not alkaloids. They are a neurotransmitter, but so they satisfies the both characters of neurotransmitters as well as alkaloids. So all they comes under the amino alkaloids. Tyramine, adrenaline, dopamine, noradrenaline. So they are synthesized from L-tyrosine or phenylalanine amino acid. You have already seen. Okay. Then tetrahydroquinoline alkaloids like morphine, codeine, papaverine, thibane, tuberculin. All they are biosynthesized from L-tyrosine amino acid. Phenyl ethyl isoquinoline alkaloids, they are biosynthesized from tyrosine or phenylalanine. So like asmaline, quinine, lycorine, okay, hemantamine. Indole alkaloids like tryptophan, they are biosynthesized from tryptophan. With simple indole alkaloids like psilocin, adoradicin, beta-carboline, okay, elaginine, harmine. Then triterpenoid indole alkaloids like asmalacin, catharantin, okay, vinca alkaloids, okay, quinine like cinchonidine, quinidine. They are the isomers of stereoisomers of each other. They differ in their only one character, to rotate the plane polarized light. Okay. So quinine, they will rotate plane polarized light. One will rotate at the left side, one will rotate at the right side. Okay. So quinidine is a dextroisomer, quinine is a levoisomer. Quinine जो होता है वो L होता है, quinidine D होता है. Quinine is used as an antimalarial, while quinidine is used as a drug in arrhythmia, cardiac suppressant. ठीक है. अभी किसी ने क्वेश्चन भेजा था आपको ग्रुप में, अभी एक देखा है मैंने जस्ट उसको, GPAT 2023 का क्वेश्चन है. सो क्विनिन क्या है? इट इज़ अ लिवो isomer of your लिवो in nature and it is anti-malarial. Quinidine क्या है? It is a dextro and it is a cardiac suppressant. So they are differs in their configuration at a single carbon.
So they have same molecular weight, they have same molecular formula, but their properties are different. Okay, so they are stereoisomers. Pyroindole alkaloids like yoambin, catherine, okay, chorenin alkaloids, ergot alkaloids like ergotamine, ergocaptine, they are also indole alkaloids. Imidazole alkaloids are biosynthesized from histidine amino acid like pilocarpine, psilocin, they are the example of imidazole alkaloid. Acridone alkaloids are biosynthesized from L-arginine, example is the acronicine. Pyridine alkaloids, they are biosynthesized from nicotinic acid, example is nothing but the nicotine and anapacin. Okay, we have already seen this yesterday, but revise kar raha hu main. Then protoalkaloids, they are biosynthesized from L-tyrosine, for example hordenine and muscarine, they are synthesized from L-tyrosine, phenylethylamine alkaloids. Okay. Now few alkaloids and their ring, alkaloids में ring कौन सा है? देखो हाइक्रीन alkaloid and coca और cocaine alkaloids, इसमें क्या होता है? पायरोल एंड पायरोलिडिन. देन एरेकोलिन, एनाबेसिन, कोनिन, लोबेलिन, ट्राइगोनेलिन, इसमें क्या होता है? पिरिडिन एंड पिपरिडिन रिंग होता है. कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच रिंग इज प्रेजेंट इन द लोबेलिन, लोबेलिन में कौन सा रिंग है? सो इसमें होता है, लोबेलिन में होता है पिपरिडिन रिंग. सो ट्रोपेन रिंग इटसेल्फ इज मेड ऑफ पिपरिडिन and N-methyl pyrrolidine. So it is present in the atropine, hyoscine, hyoscyamine. Quinoline ring is present in the cinchona alkaloids. जितने भी quinine, quinidine, cinchonine, cinchonidine, सब में quinoline ring होता है. Isoquinoline ring जिसमें होता है morphine, codeine, tuberculin, imetine, cephalin, papaverine, narcotin. Indole ring किसमें होता है? Indole, benzindole. सो अर्गोट अल्कलॉइड जितने भी है, अर्गोटामाइन, अर्गोट्रिप्टिन, अर्गोकोनिन, अर्गोटामाइन, कोई अर्गोनोविन, सब में क्या है? इंडोल है. और विन का अल्कलॉइड जितने हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, एजमेलिसिन, सब में क्या है? इंडोल रिंग है. पाइसोस्टिग्माइन में क्या है? पाइसोस्टिग्माइन में भी क्या है? इंडोल रिंग है. देन इमिडाजोल रिंग इज प्रेजेंट इन द पिलोकार्पिन, आइसोपिलोकार्पिन एंड सिलोसिन. तो ये इसमें इमिडाजोल रिंग होता है पिलोकार्पिन में. प्यूरिन रिंग इज प्रेजेंट इन द कैफिनल जैंथिन अल्कलॉइड्स. जैंथिन में क्या आता है? कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन. ठीक है, प्यूरिन टाइप ऑफ. स्टेरॉयडल अल्कलॉइड किसमें होता है? स्टेरॉयडल अल्कलॉइड होता है आपका कुर्ची बारक में, साइक्लोपेंटेनॉल पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग होगा उसमें. सो इज नथिंग बट सोलेनिडिन, कोनेसिन एंड प्रोटोवरेट्रिन. कोनेसिन इज अल्कलॉइड फ्रॉम कुर्ची बारक. The ditterpene type of alkaloid, they are present in the aconitine, aconine and hypoaconitine. Alkyl amino or amino alkaloids are there. So epitrin is the example. Epitrin is to epitrin. Then muscarine and colchicine. These are the alkyl amino or amino alkaloid. Now we'll see the next. So first alkaloid or first drug from alkaloid category. So indole alkaloids. So ये ड्रग किसका है? इंडोल अल्कलॉइड का कैटेगरी का है. इंडोल अल्कलॉइड्स, सो दे आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड. आर यू गेटिंग माय वॉइस? इंडोल अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स. सो इन दैट फर्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द अर्गोट. और कुछ लोग उसको इर्गोट भी बोलते हैं, बट इट इज अर्गोट. नाउ व्हाट इज द ड्रग? सो वाइल स्टडिंग एनी फार्माकोग्नोसिस ड्रग, जो भी फार्माकोग्नोसिस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आपको पहले से बोल देता हूँ. सो फर्स्ट यू शुड नो द नेम ऑफ दैट ड्रग. नेम ऑफ ड्रग, देयर सिनोनिम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिनोनिम्स आर इंपॉर्टेंट. देन बायोलॉजिकल सोर्स इज इंपॉर्टेंट, केमिकल, ओके. देन समटाइम्स जियोग्राफिकल सोर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आता है कभी भी जियोग्राफिकल सोर्स के ऊपर. देन chemical constituents are important. Cultivation collection parameter, that is also possible. उसमें भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. देन आउट ऑफ दैट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देन उसका यूजेस, अडल्ट्रेंट्स एंड टेस्ट, ऑल दिस पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट. सो नेम, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कल्टिवेशन कलेक्शन पैरामीटर्स, जियोग्राफिकल सोर्स.
देन उसका आता है अडल्ट्रेंट्स, ओके, एंड केमिकल टेस्ट, दे आर इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर ही क्वेश्चन होता है. सो फर्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द अर्गॉट. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अर्गॉट? इसका सिनोनिम क्या है? इट इज नोन एज अर्गॉट इज ऑल्सो नोन एज अर्गॉट ऑफ रे, रे ऑफ अर्गॉट. इट इज ऑल्सो नोन एज रे ऑफ अर्गॉट. ये उल्टा हुआ है, तो कुछ किसी बुक में अर्गॉट ऑफ रे दिया है, किसी बुक में रे ऑफ अर्गॉट दिया है. सो इट इज नोन एज रे ऑफ अर्गॉट. इट इज ऑल्सो नोन एज इरगोटा, इरगोटा, ऑल्सो नोन एज स्पर्ड रे, स्पर्ड रे. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. स्पर्ड रे इज अर्गॉट. ओके, सो अर्गॉट, रे ऑफ अर्गॉट, अर्गोटा और स्पर्ड रे, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर अर्गॉट. ठीक है, सिनोनिम से याद रखो आप, सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ दिस अर्गॉट? बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्गॉट, सो इट इज अ ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया. ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया. अभी फंगस जो होता है, फंगस का जो सेल होते हैं, फंगस, फंगल सेल, दे उसका जो ऑर्गन, मतलब वो अपने पास होता है ना, सेल्स हो गए. कलेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू, कलेक्शन ऑफ टिश्यू इज नोन एज अ ऑर्गन, एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज अ सिस्टम. वी हैव इन एनाटॉम फिजियोलॉजी. तो एनाटॉम फिजियोलॉजी में वैसे ही है, बस सेल रहेगा, बहुत सारे सेल्स साथ में ही आएंगे. सो सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस, व्हेन दे कम्स टुगेदर they are known as a tissue. When certain kind of tissue, when they come together to perform a certain function in a biologically, they are known as the organ. For example, liver, liver में क्या रहेगा, सभी सेल रहेंगे जिसमें मेटाबॉलिज्म करने का कैपेसिटी रहेगा. ब्रेन में क्या है, सेल है, सेल का से सब न्यूरोलॉजिकल सेल्स है ना. आपके हार्ट में सब सेल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है. तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स दे कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, to perform or to serve as a specific function. They are known as a tissue. Similar kind of tissue comes together to form a organ. Similar kind of organs or different organs combines together to depict a system. That is in anatomy. Likewise that जो fungal cell होता है, so fungal cell, so when fungus infects, okay, when fungus infects the ray, so that is known as a sclerotium, infected sclerotium. So dried sclerotium of fungus Claviceps purpurea. अभी fungus का नाम क्या है, Claviceps purpurea. So it is a fungus, name of fungus. So it is a dried sclerotium of fungus Claviceps purpurea. Okay. Tulsi, family Claviceptaceae or Hypocreaceae. Now this fungus, ये जो fungus है कहाँ पे ग्रो होता है? This fungus is developed on the in the ovary of ray plant known as sickle cerulli family lamini. एक रे प्लांट होता है आपका, जो चावल होता है, चावल का प्लांट. सो दिस फंगस इट इन्फेक्ट द रे प्लांट. ओके, दिस फंगस कौन सा फंगस? क्लेविसेप्स पर्पुरिया, क्लेविसेप्स पर्पुरिया. सो दिस फंगस डेवलप इन्फेक्ट द प्लांट, ओके, और ओवरी ऑफ द रे प्लांट. ओवरी मतलब वो जो आपका चावल का जो दाना निकलता है वो ओवरी से निकलता है. डेवलप्ड इन द, ओके, सो ड्राइड स्केलेटन ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया फैमिली क्लेविसेप्टेसी और हाइपोक्रेसी डेवलप इन द रे प्लांट, ओवरी ऑफ रे प्लांट नोन एज सिकल सेरेली फैमिली ग्रैमिनी. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कि अर्गॉट अल्कलॉइड्स आर द what is the source of ergot alkaloids? So it is often found dried sclerotium of, okay, Claviceps purpurea family Claviceptaceae, which is a fungus. Now it is developed in the ovary of ray plant known as a sickle cerulli plant. का नाम क्या है? sickle cerulli family क्या है? ग्रैमिनी. प्लांट कौन सा है? रे प्लांट. रे मतलब उसका चावल का. ठीक है. Now what is the geographical source of this? So okay, that is the, now it contains not less than 0.19% of total alkaloid. Ergot consists of not less than 0.19% of total alkaloids calculated as a ergotoxin, which is not a less than 15% and consists of a water soluble alkaloid. तो ergotoxin में भी क्या है? not less than 15% consists of a water soluble alkaloids. So it consists of a, ergot में क्या है कि it is a dried
dried sclerotium of fungus Claviceps purpurea family Claviceptaceae developed on a ray plant known as a Secale cerulea, उसका फैमिली है ग्रेमिनी। ठीक है, तो ये क्या है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया, ये फंगस है, इसकी फैमिली क्या है फंगस की, क्लेविसेप्टेसी, और उसको हाइपोक्रियासी भी बोलते हैं, हाइपोक्रियासी। एंड दिस फंगस इन्फेक्ट द रे प्लांट, ओके, ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो इट इन्फेक्ट द ओवरी ऑफ रे प्लांट। कौन सा प्लांट है, सेकल सेरेली, फैमिली क्या है उसकी, ग्रेमिनी। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 0.19% और 0.98% ऑफ टोटल अल्कोलाइड, कैलकुलेटेड एज अर्गोटॉक्सिन। मतलब अर्गोट मतलब क्या, अर्गोटॉक्सिन अल्कोलाइड होना चाहिए उसमें। अर्गोटॉक्सिन इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ अर्गोटॉक्सिन में विच इज नॉट आउट ऑफ which not less than 50% consist of a water soluble alkaloid calculated as a ergometry। क्वेश्चन आता है वाटर सोल्यूबल कौन है, वाटर इनसोल्यूबल कौन है, ergometry। It also consists of 0.01% ergonovin and it is cultivated in the Switzerland, Yugoslavia, Hungary and Czechoslovakia। हंगरी में कल्टिवेट किया जाता है, स्विट्जरलैंड में यूगोस्लाविया एंड चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, इसको चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं। नाउ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, देयर आर टू वे टू कल्टिवेट दिस अर्गोट। एक होता है नेचुरल वे, सो नेचुरल वे एंड दैट इज एंड अनदर इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल वे। सो नेचुरल वे, cultivation of plant and subsequently infecting the fungus। Okay. So initially you have to cultivate the plant and allow that plant to be infected by fungus. That is a natural way to produce the ergot alkaloids। Okay. Now artificial way is nothing but the, it is known as the saprophytic production। इसके स्टेजेस होते हैं, 2-3 स्टेज होते हैं, अपन देखेंगे। सो स्क्लेरोटियल, ओके, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर एक बार। स्क्लेरोटियल स्टेज और डोर्मेंट स्टेज, स्क्लेरोटियल स्टेज और डोर्मेंट स्टेज कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्गोट alkaloids आर प्रेजेंट इन द अर्गोट व्हेन इट इज अंडर द स्क्लेरोटियल स्टेज और डोर्मेंट स्टेज। नाउ विल सी द डिफरेंस, ओके, लाइफ साइकिल ऑफ योर अर्गोट, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, or life cycle of ergot, life cycle of ergot। लाइफ साइकिल ऑफ ergot, ये ग्रो कैसे होता है, लाइफ साइकिल ऑफ ergot। सो उससे स्टेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज होता है पहले, इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, हनी ड्यू स्टेज, इट इज ऑल्सो नोन हनी ड्यू स्टेज और cephalical stage, cephalical stage। Infection of ovary of the plant, infection of ovary of the ray plant at the base by ascospore। ascospore क्या होता है, they are the fungus spores present in the soil। आपके ज़मीन के अंदर ही फंगस के स्पोर्स होते हैं, उसको बोलेंगे ascospores। ओके, so infection of ovary of the ray plant at the base of the at the base by the ascospore of the fungus इन समर और इन द स्प्रिंग सीजन। समर में होता है या फिर स्प्रिंग सीजन में होता है। नाउ इट जर्मिनेट्स इन द मॉइस्चर एंड डम्प क्लाइमेट। ये जर्मिनेट होता है ना रे प्लांट डम्प कंडीशन में और मॉइस्चर में। नाउ इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपा। जब ये इन्फेक्शन होता है वो भी जर्मिनेट होता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपा। व्हाट इज हाइपा, इट इज नथिंग बट सॉफ्ट मास ऑफ टिश्यू ओवर द ओवरी ऑफ द, ओके, soft white mass of the tissue over the surface of ovary। Now it is known as a mycelium। mycelium secretes a viscous sugary fluid। mycelium क्या करता है, बाद में secrete करता है viscous sugary fluid, okay, that is known as a honeydew। वो sugary fluid को क्या बोलते हैं, honeydew। it is known as a honeydew। So when ascospore infect the ovary of the ray plant at the base, so after that it develops a soft mass of tissue over the ovary, over the surface of ovary। Now that soft mass is known as mycelium and mycelium secretes a sugary fluid। sugary fluid secrete करता है, क्या बोलते हैं उसको, honeydew। Now which attracts the insect and ants।
ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और चींटियों को अट्रैक्ट करेगा। कौन? ये हनी ड्यू। किसके लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाए। स्क्लेरोटियम स्टेज, सेकंड होता है स्क्लेरोटियम स्टेज। So it is a dormant stage of the fungus and consists of a highest amount of alkaloid. इसमें सबसे ज़्यादा अल्कोलाइड रहेंगे। ओके, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन द स्क्लेरोटियम स्टेज। स्क्लेरोटियम स्टेज, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन द स्क्लेरोटियम स्टेज। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? तो क्वेश्चन क्या आता है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अर्गोट अल्कोलाइड्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अर्गोट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में क्या है? सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज होता है, उसको ही अपना हनीड्यू स्टेज बोलते हैं, उसको ही सेपेलिकल स्टेज बोलते हैं। और दूसरा होता है स्क्लेरोटियल स्टेज और स्क्लेरोटियम स्टेज। तो मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्क्लेरोटियम स्टेज, नॉट इन द हनीड्यू स्टेज। हनीड्यू स्टेज किसके लिए होता है? टू अट्रैक्ट द ants and insect and to spread the more infection. ठीक है, यहाँ पर प्लांट microscopic character of that plant. It is not important. Sclerotium does not consist of a starch and calcium oxalate or any kind of lignified tissue. मतलब इसमें स्टार्च नहीं होता है और इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं होते, लिग्निफाइड टिश्यू नहीं। मतलब इफ यू ट्राई टू treat this sclerotium with the fluoroglycerol and HCl solution, so they will not get stained pink. Why? Because they does not have any lignified tissue. So microscopy is not important. This is important. Chemical constant present in this ergot. Chemical constant present in the ergot. Chemical constant of ergot alkaloids, they are divided into different types. पहला होता है water soluble group. So water soluble or ergometrine group. First, water soluble or ergometrine group. Second, water insoluble or ergotamine group. Third, water insoluble or ergotoxin group. Okay. Now, water soluble ergometrine group. So in that you are going to have ergonovin, ergometrine. Ergometrine is a levorotary. Then ergometrinin. Ergometrinin is a dextrorotary. ये देखो मेट्रिन और यहाँ पे है ट्रिनिन, नी नहीं है ना, ये नहीं तो देखा है लास्ट में, ये ना, ये मतलब क्या? आइसोमर। सो ergometrin is a levorotary, ergometrinin is a dextro, and they belongs to ergometrine group which are water soluble. Okay, तो क्वेश्चन आता है which are the water soluble, which alkaloid from the ergot is a water soluble? क्वेश्चन ऐसा आता है ना। तो आपको ऑप्शन में आएगा ergometrin है ना, ergotamine, ergocryptin, अर्गोक्रिस्टिन, अर्गोकोनिन, ये सब क्वेश्चन में आएगा आपको ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है अर्गोमेट्रिन इज अ वाटर सोल्यूबल, देन अर्गोमेट्रिनिन इज अ वाटर सोल्यूबल, अर्गोनोविन इज अ वाटर सोल्यूबल। ठीक है, नाउ सेकंड आता है वाटर इनसोल्यूबल और अर्गोटामाइन ग्रुप। अर्गोटामाइन ग्रुप ये क्या है? वाटर इनसोल्यूबल होता है अर्गोटामाइन। सो इन दैट अर्गोटामाइन इज देयर, अर्गोसिन इज देयर, दीज आर द टू अल्कोलाइड्स। ठीक है, थर्ड आता है थर्ड क्लास वाटर इंसोल्यूबल और अर्गोटॉक्सिन ग्रुप। तो इसमें अर्गोक्रिप्टिन आएगा, अर्गोक्रिस्टिन आएगा एंड अर्गोकोनिन आएगा। पहले अर्गोमेट्रिन में क्या आता है? अर्गोमेट्रिन मीन्स वाटर सोल्यूबल। ओके, सो अर्गोनोविन आएगा, उसमें अर्गोमेट्रिनिन आएगा। अर्गोमेट्रिन क्या है? लिवो है, अर्गोमेट्रिनिन टेक्स्टो है। वाटर इंसोल्यूबल में अर्गोटामाइन ग्रुप में क्या आएगा? अर्गोटामाइन ग्रुप और वाटर इंसोल्यूबल, तो अर्गोटामाइन एंड अर्गोसिन। वाटर इंसोल्यूबल अर्गोटॉक्सिन ग्रुप, इसमें अर्गोक्रिप्टिन आता है, अर्गोक्रिस्टिन आता है, अर्गोकोनिन आता है, अर्गोकोनिन आता है। तो ये क्या है? सब अल्कोलाइड्स है। ऑल दिस आर द अल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन द योर अर्गोट प्लांट। ओके, नाउ सफिक्स क्या है? सफिक्स में इसमें क्या है? आयनी। सफिक्स जिसको आयनी है, आयनी किसको है? देखो अर्गोनोविन को आयनी है, अर्गोमेट्रिन को आयनी है, अर्गोमेट्रिनिन को क्या है? आयनी है, नीन है, इसको नीन है ना। तो जो भी अल्कोलाइड है उसको आयनी सफिक्स है। दोज अल्कोलाइड्स विच आर हैविंग आयनी सफिक्स, सो ऑल दे आर द लिवोरोटरी एंड मेडिसिनली एक्टिव। नाइपर के लिए क्वेश्चन आता है। सो दोज अल्कोलाइड फ्रॉम अर्गॉट विच आर हैविंग आयनी सफिक्स, दे आर एक्टिव
and they are levorotatory. Now those alkaloids which has a suffix NINE, so they are the dextrorotatory. For example यहाँ पे देखो अर्गोमेट्रिनिन, इसमें क्या है NINE, NINE तो क्या है डेक्स्ट्रो है, INE तो क्या है लिवो है, ठीक है। तो NINE वाले डेक्स्ट्रो, INE वाले लिवो, यहाँ पे अर्थ, ठीक है। ऑल alkaloids of this ergot, all alkaloids of this ergot, they are the derivative of lysergic acid. All alkaloids are derivative of lysergic acid. lysergic acid क्या होता है, hallucinogen होता है CNS tumor. And all alkaloids present in the ergot, they are present in the peptide form. They are present in the peptide form and therefore sometimes called as the peptide alkaloids. इसके ऊपर नाइपर में क्वेश्चन आ चुके हैं. So alkaloids in the ergot are present in the form of lysergic acid. Peptide alkaloids is present in the which ergot. ठीक है, समझ में आया ये, yes or no? नेक्स्ट आता है आपका यूजेस. उसका यूज क्या है? सो ergot is oxytocic in nature. Oxytocic मतलब क्या है? What do you mean by oxytocic? Yes, anybody? Ergot is oxytocic in nature. What do you mean by oxytocic? ऑक्सीटोसिन मतलब ऑक्सीटोसिन लाइक एक्शन. ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? इट इज़ अ हार्मोन. ऑक्सीटोसिन इज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेग्नेंट लेडी, सो ड्यूरिंग द डिलीवरी. सो दिस okay, oxytocin causes the contraction of uterus muscle and it helps in the delivering the baby, and also it contracts the muscles around mammary gland to release the milk. So that is the oxytocin. So oxytocic मतलब क्या है? ये भी क्या करेंगे? It will also uterine, it also stimulate the uterus for the contraction. Okay, so they are the oxytocic. It is also used to prevent the postpartum hemorrhage. है ना, डिलीवरी के बाद में जो हीमोरेज होता है उसके लिए पोस्टपार्टम हीमोरेज. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन. तो उसका देखो मैंने प्रैक्टिस किया है ऑलरेडी मेडिकल के ऊपर बहुत 4-5 साल. सो आई नो वेरी वेल. सो देर आर 2 इंजेक्शंस. वहाँ पे 2 इंजेक्शन होते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी. जब डिलीवरी का डेट आता है ना, जब डिलीवरी होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उस टाइम पे वो लेडी को 2 इंजेक्शन लगाते हैं. 2 इंजेक्शन. कौन से 2 इंजेक्शन लगाते हैं? एक होता है पिटोसिन. पहला इंजेक्शन होता है पिटोसिन में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है. दूसरा एक इंजेक्शन होता है, उसका नाम है मिथरजिन में क्या होता है? ये होता है अर्गोटामाइन. मिथरजिन में होता है अर्गोट ऑक्साइड्स, पिटोसिन में होता है ऑक्सीटोसिन. तो ये दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को लगा देते हैं. तो उससे क्या होता है कि उसके यूटेरस में इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है कि बेबी फटक से बाहर आ जाता है. तो ये डिलीवरी के वक्त ये 2 इंजेक्शन लगते हैं, है ना. तो 5 मिनट में तो डिलीवरी होती है ना. तो ये 2 इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक है. ऑक्सीटोसिन उन्हें जो पिटोसिन इंजेक्शन उसका ब्रांड नेम है, और मिथरजिन उसमें होता है अर्गोट ऑक्साइड्स, और ये ब्रांड नेम है. ठीक है. सो इट इज़ एडिशनल नॉलेज पूरी. ये आपके टीचर लोगों को मालूम नहीं होगा. इसके लिए सब काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिपेयर्ड अर्गोट. So powdered ergot and immediately defatted ergot. पाउडर करना है ergot का, उसके बाद में defat करना है, मतलब यूजिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फैटी मटेरियल रिमूव करना है. सो पाउडर्ड एंड इमीडिएटली डिफैटेड ergot contain 0.19% of total alkaloids calculated as a ergotoxin. That is known as a prepared ergot. स्टोरेज क्या है इसका? स्टोरेज, सो इट इज स्टोर्ड इन द well closed and cool container. It is stored in the well closed container in the cool place. It is sensitive to the moisture. Okay, and thorough drying is required. Broken pieces of sclerotia is susceptible for fungal growth. ये तो फंगस ही है ऑलरेडी, बट इसके ऊपर भी फंगल ग्रोथ का खतरा होता है. नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट द केमिकल टेस्ट फॉर अर्गोट अल्कलॉइड्स. क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुके क्वेश्चन इसके ऊपर. तो इससे पहले अपन ये देख लेंगे. तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले. सो अर्गोट विल लुक लाइक दिस. ये जो है इसको बोलते हैं स्क्लेरोटियम. ड्राइड स्क्लेरोटियम. ये जो ब्लैक है, इट इज नथिंग बट द फंगस. डेवलप्ड ऑन द रे प्लांट ओवरी ऑफ रे प्लांट नोन एज सिकल सेल फैमिली ग्रामिनी. क्लेविसेप्स पर्पुरिया फैमिली क्लेविसेप्टेसी.
डेवलप्ड ऑन द ओवरी ऑफ रे प्लांट नोन एज अ सिकल सेरेली फैमिली ग्रामिनी, ठीक है। तो ये होता है आपका अर्गॉट, ठीक है। और ये डेवलप कैसे होता है? सो एस्कोस्पोर्स, सो जैसे ये स्पोर्स है वो सॉइल में जाते, सॉइल में जाते हैं ड्यू टू विंड। क्या होता है? ड्यू टू विंड एस्कोस्पोर, विंड में जो है ना वो विंड से एस्कोस्पोर क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे इसको, रे प्लांट को। सो ओवरी ऑफ रे प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय एस्कोस्पोर्स आइदर फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम एयर। नो एस्कोस्पोर्स, नो ओवरी कंटेमिनेटेड, ओके, ओवरी कॉलोनाइज्ड बाय फंगस फ्रॉम द बेस अपवर्ड, ठीक है। ये जो बेस होता है एक सिंगल इसका ओवरी का, इसमें बहुत सारे ओवरी है, ये सारा ओवरी से जहाँ पे ग्रेन डेवलप होगा, सो डेवलप होगा। बाद में इन्फेक्शन के बाद में ये क्या करता है? डेवलप होके हनीड्यू स्टेज करता है, हनीड्यू स्टेज। सो हनीड्यू एक्सक्लूड्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड, हनीड्यू स्टेज विल लुक लाइक दिस। हनीड्यू स्टेज जो होता है वो ऐसा दिखता है क्योंकि उसमें शुगरी फ्लूइड सिक्रेट करता है वो, एंड वो शुगरी फ्लूइड क्या करता है फिर, ठीक है, एंड्स, इंसेक्ट्स, उसको सबको अट्रैक्ट करता है और वो ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। देन वो जब पूरा उसका जो ओवरी उसका यूटिलाइजेशन करता है तो ये अर्गॉट विल डेवलप इन प्लेस ऑफ ग्रेन। तो जहाँ पे वो चावल का दाना, चावल का ग्रेन डेवलप होना था उसकी जगह पे क्या डेवलप हुआ? फंगस। यहाँ पे ब्लैक कलर का क्या है? फंगस। So ergot develops in place of grain. Now ergot overwinter and grounded on the soil with sand. जब उसको अपने जब कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को, जब आप ये करते हैं क्या, सो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ये अर्गॉट ड्रॉप हो जाता है किसमें? सॉइल में। एंड फिर जब सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न है ना, स्प्रिंग सीज़न या फिर मॉइस्चर कंडीशन आता है, so these ergots will germinate in the spring season and it will release the ascospores in the surrounding area. Ascospores रिलीज करेंगे और फिर से ascospore नया क्रॉप को इन्फेक्ट करेंगे। so that is known as a life cycle of ergot, ठीक है। Are you getting? समझ रहे हैं आपको? Now chemical test for ergot alkaloids. Chemical test for ergot alkaloids. So very very important test होता है, very 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 important, 3-4 बार क्वेश्चन है उसका। Van Wurk reagent. Van Wurk reagent. So what is the Van Wurk reagent? So it is a specific test for ergot alkaloids. Specific test for ergot alkaloid क्या है? Van Wurk reagent. Reagent क्या है? पैरा डाइमिथाइल अमोनो बेंजाइलेट। reagent के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है और टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। Van Wurk test is test for identification of ergot alkaloids and the reagent is nothing but the para dimethyl amino benzoylate. Okay, कलर कौन सा मिलता है? ब्लू कलर. So ergot will give you blue color with the para dimethyl amino benzoylate and the test is known as a Van Wurk test or Van Wurk reagent. Okay. Now second test, the powder drug treated with the solvent ether and sulfuric acid. Then you have to filter and treat it with the saturated solution of sodium bicarbonate. You will get a red violet color in the aqueous layer. Then और स्पेसिफिक टेस्ट होता है अर्गोमेट्रिन के लिए. व्हेन अर्गोमेट्रिन डिजोल्व इन द वाटर में जब डिजोल्व करेंगे अर्गोमेट्रिन को, इट विल शो यू ब्लू फ्लोरोसेंस इन द वाटर. ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये. देन अर्गोटामाइन स्पेसिफिक टेस्ट, अर्गोटामाइन का स्पेसिफिक टेस्ट है. स्मॉल पाउडर ऑफ अर्गोट अल्कलॉइड, you have to add glycolic acid and then ethyl acetate and in a small portion. So small portion of that treat with the sulfuric acid. पहले क्या करना है? अर्गोटामाइन का टेस्ट कैसे, इधर अर्गोटामाइन इज प्रेजेंट इन योर अर्गोट पाउडर और नॉट. स्मॉल पाउडर ऑफ अर्गोट यू हैव टू टेक, add glycolic acid, okay, then ethyl acetate and in a small portion, then treat with the sulfuric acid and shake, and then by addition of ferric chloride it will show, okay, it will show blue color with red tinge. Blue color deepens while, okay, red tinge become faint upon addition of ferric chloride. पहले तो ये क्या बनेगा? ब्लू कलर बनेगा, उसमें एक लाल रेड कलर का एक रिंग आएगा, टिंज. ठीक, बाद में आफ्टर एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड ब्लू कलर डिपन्स, जो ब्लू कलर है वो और ज़्यादा गाढ़ा होता है और रेड टिंज बिकम फेंट.
अंडर यूवी लाइट रेड फ्लोरोसेंस इज देयर, रेड फ्लोरोसेंस दिखाएगा कौन, आर्गन ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है नक्स ओमिका। नक्स ओमिका कौन सा है, नक्स ओमिका। नक्स ओमिका सिनोनिम क्या है, देखो इसकी सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सिनोनिम ऑफ नक्स ओमिका काउ फिग, क्या है, काउ फिग। काउ फिग दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी दिस प्रॉपरली? सो नक्स ओमिका सेकंड तक है आपका अल्कलॉइड्स में, उसका सिनोनिम क्या होगा, काउ फिग। काउ फिग also known as semen strychnine, semen strychnine और क्रैकर्स बटन, क्रैकर्स बटन, क्रैकर्स बटन और बैचलर्स बटन, और इट इज ऑल्सो नोन एज होमिट नट। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। होमिट नट इज अ सिनोनिम ऑफ, होमिट नट इज अ सिनोनिम ऑफ नक्स ओमिका। काउ फिग इज अ सिनोनिम ऑफ नक्स ओमिका। ये तो समझ में आएगा, स्ट्रिचनी है मतलब स्ट्रिचनी है मतलब स्ट्रिचनिन, स्ट्रिचनिन किस में होता है ना, समझ में आएगा। लेकिन क्वैकर्स बटन, बटन भी समझ में आता है क्योंकि इसका जो सीड्स होता है वो बटन के जैसे होता है, शर्ट का बटन जो होता है ना उसके सीड होता है इसका। सो क्वैकर्स बटन, बैचलर्स बटन, होमिट नट, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर नक्स ओमिका। ठीक है, नक्स ओमिका। नाउ बायोलॉजिकल सोर्स एंड जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? सो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? सो इट इज अ ड्राइड राइप सीड। ठीक है, सीड से ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्टिचनस नक्स ओमिका, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्टिचनस नक्स ओमिका फैमिली लोगेनेसी, and it contain not less than 1.2% of total alkaloids calculated as a strychnine. कहाँ पे पाया जाता है? What is the geographical source of this nux vomica? So it is found in the Sri Lanka, northern Australia, India. It is also abundantly found in the South India, like तमिलनाडु, केरला, मलाबार कोस्ट, है ना। जो साउथ के एरिया है, तमिलनाडु, केरला, है ना, उड़ीसा, कोंकण रीजन, है ना, उसमें ये नक्स ओमिका सीड पाया जाता है। सो इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, इन कोंकण रीजन, इन मैसूर एंड गोरखपुर। Now how it is collected? So it is not medicinally collected. The ripened fruits are collected and seeds are freed out of the pulp. They are washed with water and separated by floating test in the water. Collection is done in November to February. तो मोस्टली जो नक्स ओमिका होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट। जो जंगल में जो ऐसे ही प्लांट आ चुके हैं उसके ही उससे ही कलेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट मेडिसिनली ग्रोन। ठीक है, राइपन फ्रूट्स आर कलेक्टेड, जो पके हुए फल है उसके वो लिए जाते हैं और उसके बाद में उसका जो सीड है वो अलग किया जाता है एंड इट वाश्ड विद वाटर सेपरेट बाय फ्लोटिंग टेस्ट इन वाटर। जो फ्रूट होंगे उसको निकालने हैं। कलेक्शन इज डन इन नवंबर टू फरवरी में। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एपिडर्मिस ऑफ दिस सीड इज हाईली थिकन्ड, pitted एंड कंसिस्ट ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम। क्वेश्चन क्या आया था? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सीड्स। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स फॉलोड बाय कोलेप्स सेल लेयर। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है इसका। सो इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ दिस नक्स ओमिका इज नथिंग बट द lignified trichomes followed by collapse cell layer. That is the important characteristic of microscopic character of nux vomica. Okay. Then endosperm मतलब inner part of seed is thick walled, consist of polyhedral, unlignified and alluvium grains, oil globules, calcium auxiliary crystals and starch grains are absent in this seed. ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन आ गया तो इसके ऊपर आता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स फॉलोड बाय कोलेप्स सेल लेयर। ठीक है, क्या है इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स? अभी लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है मतलब क्या? व्हेन यू ट्रीट दिस सीड्स विद फ्लोरोग्लिसनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो द सीड विल स्टे इन पिंक कलर। ठीक है, अगर आपने सीड को ट्रीट किया इसके साथ में फ्लोरोग्लिसनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, जितने भी ट्राइकोम्स हैं ना वो सब पिंक कलर के दिखेंगे। क्यों? सो लिग्निन कंबाइन विद द फ्लोरोग्लिसनॉल एंड टू गिव यू पिंक कलर। याद रखना है, क्वेश्चन आता है उसका।
chemical constants present in the noctumica. So it has a indole alkaloids. Indole type of alkaloids are there. Indole type के alkaloid कौन से है? Strychnine and brucine. These are the two main type of alkaloid. Strychnine, brucine ये दो main type alkaloid है उसका. उसके बाद में उसमें होमेसिन होता है, अल्फा बीटा, कॉलोप्रिन होता है, ग्लाइकोसाइड भी होता है, एक लोगेनिन. तो इसके ऊपर फिर नाइपर में एक बार क्वेश्चन आएगा. तो नाइपर में क्वेश्चन क्या आया था? यू नो दैट नक्स होमिका इज अल्कलॉइडल ड्रग. इसमें क्या होता है? अल्कलॉइड्स थे, बट देयर इज वन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन द नक्स होमिका. कौन सा है? लोगेनिन. तो नाइपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, विच ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन द नक्स होमिका. ठीक है, नक्स होमिका सबको लगता है, सबको लगता है ये. एवरीबडी थिंक्स दैट इज अ ग्लाइकोसाइडल ड्रग, सो इट विल नॉट हैव ग्लाइकोसाइड. इट इज अ अल्कलॉइडल ड्रग, बट उसमें एक ग्लाइकोसाइड भी होता है. कौन सा है? लोगेनिन. और स्ट्रिचनिन, अभी देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए. स्ट्रिचनिन जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म, है ना. कुछ ऐसा आपका सीड रहेगा, है ना, कुछ ऐसा आपका सीड रहेगा. मेरे को पूरा सर्कल नहीं करते आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ सीड रहेगा. तो जो बीच में वाला जो पार्ट होता है, मिडल पोर्शन होने से एंडोस्पर्म, एंड ये जो पार्ट है इट इज नोन एज पेरिपेरल पार्ट. ठीक है. सो स्ट्रिचनिन जो होता है, स्ट्रिचनिन इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म. स्ट्रिचनिन सेंट्रल में होता है, स्ट्रिचनिन सेंट्रली प्रेजेंट होता है. एंड ब्रूसिन जो होता है, ब्रूसिन इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी. स्ट्रिचनिन जो होता है सेंट्रल एंडोस्पर्म में होता है, एंड पेरीफेरल पार्ट में ब्रूसिन होता है. बट ओके, ब्रूसिन इज अ डायमिथॉक्सी स्ट्रिचनिन. ब्रूसिन क्या है? डायमिथॉक्सी स्ट्रिचनिन. तो स्ट्रिचनिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डायमिथॉक्सी जो है उसको बोलेंगे ब्रूसिन. सो डायमिथॉक्सी स्ट्रिचनिन इज अ ब्रूसिन. स्ट्रिचनिन इज फाउंड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म. ब्रूसिन इज फाउंड इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. इतना याद रखना है आपको. एंड ब्रूसिन इज अ 1/6 टाइम प्रोटॉन देन स्ट्रिचनिन. 1/6 टाइम प्रोटॉन देन स्ट्रिचनिन. मतलब पोटेंट कौन है? पोटेंसी. ब्रूसिन इज ब्रूसिन इज अ डायमिथॉक्सी. ब्रूसिन क्या है? डायमिथॉक्सी स्ट्रिचनिन इज अ लेस पोटेंट देन स्ट्रिचनिन. क्या है? 1.6 पोटेंट देन, इट इज अ लेस पोटेंट. देन बिटरनेस, ब्रूसिन इज अ 4 times मोर बिटर देन स्ट्रिचनिन. तो पोटेंसी में ब्रूसिन कम है स्ट्रिचनिन से, लेकिन बिटरनेस में ज़्यादा है. नाउ स्ट्रिचनिन इज नो मोर यूज्ड, ब्रूसिन इज ऑल्सो नो मोर यूज्ड, बट ब्रूसिन इज समटाइम्स यूज्ड इन द डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. जो आपका जो स्पिरिट होता है, जैसे आपका हैंड वॉशिंग में स्पिरिट आता है, या फिर अल्कोहल जो होता है जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, तो उसका डीनेचुरेशन करने के लिए ब्रूसिन यूज़ करते हैं. ओके, केमिकल कॉन्स्टेंट यूजेस क्या है उसके यूज? सो इट इज़ यूज एज अ बिटर स्टोमेचिक. स्टोमेचिक मतलब इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज़ अ बिटर स्टोमेचिक टॉनिक, सीनस स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट. Brucin is used for denaturing the alcohol, and it is also used in the denaturation of non-edible oils. It is a dog poison. क्या है? It is a dog poison, है ना. कुत्ते मारने की दवा. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, उसमें रह गए कुत्ते मारने की दवा. कौन है? डॉग पॉइजन, ब्रूसिन. एंड इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बिटरनेस वैल्यू. ब्रूसिन इज अ स्टैंडर्ड फॉर बिटरनेस वैल्यू, बट ब्रूसिन एज इट इज पॉइजनस, सो उसमें क्विनिन यूज़ करते हैं, ब्रूसिन यूज़ नहीं करेंगे. दो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर बिटरनेस वैल्यू, बट क्विनिन इज यूज. ब्रूसिन इज अ टॉक्सिक इन नेचर. स्ट्रिचनिन तो उससे भी टॉक्सिक होता है. आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहे हैं आपको? आर यू गेटिंग और नॉट? अपन इतना डर ले लेंगे और रुक जाएंगे. What is the substitute of this drug? Substitute कौन है इसका ड्रग का? So Strychnos nux blanda, adulterant and substituents. Strychnos nux blanda, इसका ऑफिशियल सोर्स क्या है? Strychnos nux vomica. अडल्ट्रेंट कौन है? Strychnos nux blanda. इसमें क्या है? डिफरेंस क्या है? Strychnos nux blanda कंसिस्ट ऑफ रीजेस ऑन एज. जो इसका शीर्ष रहेगा स्टिचनस नक्स ब्लेंडर का, उसमें
लाइन्स रहेंगे, लाइन्स ridges ऑन द सीड irregular in the shape and only less amount of alkaloid, trace of alkaloid. Then Stichnus potatorum, Stichnus nuxblenda, Stichnus potatorum, they are also okay, they are the substitute for the original drug. Now Stichnus potatorum is also known as a clearing nut. Okay, it is a smaller than original drug. It is a thicker yellowish buff colored seeds and contain diaboline and traces of strychnine and brucine. तो डायबोलिन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड्स आर दे देना स्टिचनस पोटेटोरियम. अपना जो ओरिजिनल ड्रग है उसमें क्या है, स्टिचनिन एंड ब्रुसिन. तो स्टिचनस पोटेटोरियम जो होता है, स्टिचनस पोटेटोरियम, उसमें उसको क्लियरिंग नट भी बोलते हैं. उसमें उसका सीड का साइज कम होता है, ज़्यादा थिक होता है, येलो कलर का होता है वो, एंड कंटेन्स डायबोलिन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. एंड फ्यू अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ योर स्टिचनिन. अलाइड ड्रग कौन थे, बाकी और कौन सा ड्रग है, अलाइड ड्रग है स्टिचनस वॉलिचियाना, ठीक है, स्टिचनस इगनाती, कंटेन नॉन लिग्निफाइड डिटैच्ड ट्राइकोम्स. बस ये अलाइड ड्रग है. उसके बाद में उसका केमिकल टेस्ट फॉर नक्स ओमेगा, केमिकल टेस्ट फॉर नक्स ओमेगा, केमिकल टेस्ट फॉर नक्स ओमेगा. सो पहला होता है टीएस ऑफ नक्स ओमेगा, यू हैव टू ऐड मेंडेलियस रिएजेंट. एंड मेंडेलियस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम वैनाडेट विद सल्फ्यूरिक एसिड. मेंडेलियस रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, केमिकल टेस्ट है स्पेसिफिक. मेंडेलियस रिएजेंट, ammonium vanadate and sulfuric acid. You will get a purple color due to presence of strychnine in the endosperm. तो मैंडेन रिएजेंट के साथ में स्टिचनिन आपको देगा पर्पल कलर. देन टीएस ऑफ दिस नक्स ओमेगा प्लस नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के साथ में टीएस स्टेट करेंगे तो येलो कलर मिलेगा, दैट इज ड्यू टू ब्रुसिन. सो स्टिचनिन विल गिव यू पर्पल कलर विद द मैंडेन्स रिएजेंट and brucin will give you a yellow color with the nitric acid. These two are the very important test. Question of this. Strychnine with the sulfuric acid and potassium dichromate give you violet color, which turns into red and finally yellow. Hemicellulose test. Hydrochloric acid plus iodine on the thick section of your seed, you will get a blue color staining. क्यों, उसमें क्या है, सेलुलोज होता है, इसके लिए आयोडीन सेलुलोज के साथ में ब्लू कर देगा. बायोलॉजिकल टेस्ट है उसमें स्टिचनिन, बायोलॉजिकल, ये सभी केमिकल टेस्ट है, लिखने में वो केमिकल है. बायोलॉजिकल टेस्ट स्टिचनिन 2/1000 मिलीग्राम व्हेन इंजेक्टेड इनटू द टेल ऑफ माउस, पल्पिटेशन ऑफ टेल इज देयर. माइस जो होता है, माइस की पूंछ में इंजेक्ट करना है आपको ये स्टिचनिन. इट इज एज इट इज अ रिफ्लेक्सिन स्टिमुलेंट, स्पाइनल स्टिमुलेंट होता है, तो ये पल्पिटेशन करेगा टेल का. सो दीज आर नथिंग बट द दिस इज नथिंग बट द प्लांट ऑफ योर स्टिचनस नक्स ओमेगा. कुछ इस तरीके से सीड, इस तरीके से उसका फ्रूट होता है. एंड इफ यू रिमूव द सीड फ्रॉम दैट फ्रूट, सीड विल लुक लाइक दिस. बटन के जैसे लग रहे हैं, शेड के बटन जैसे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ क्वैकर्स बटन और सिंगल्स और बैचलर्स बटन. क्वैकर्स बटन और बैचलर्स बटन. सो विल सी रिमेनिंग पार्ट टुमारो. कल देखने को